پھلوں کی قیمتیں سنکر شہریوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ ندیم مغل کی رپورٹ۔ شہری پھلوں کی قیمتیں سن کر پریشان ہو گئے۔ سیب 160 سے 180 روپے فی کلو، جبکہ انگور 300 روپے اور انار 160 روپے سے 180 روپے فی کلو بکنے لگے۔ اسی طرح جاپانی پھل 170 روپے اور امرود کی 130 روپے فی کلو فروخت جاری ہے۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ اب تو بچوں کو پھل بھی نہیں کھلا سکتے۔ دکاندار بیچارہ پریشان ہے، ادھر کسٹمر جو ہے وہ اپنا داؤ کے اوپر ہوتا ہے کہ ہمیں سستا بھی مل جائے اور اچھا بھی مل جائے، پر یہاں جو آڑتی ہے اچھے فروٹ کی اچھی قیمت لیتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے لاکھوں پودے لگائے گئے، اگر پھلدار پودے لگائے جاتے تو عام آدمی کے لیے آنے والے وقت میں پھل ہی سستا میسر ہو جاتا۔ فروٹ اس وقت اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ کسی بھی غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے فروٹ کھانا۔ اگر یہ دیکھیں 1 ملین ٹری درخت لگا رہی تھی موجودہ حکومت، اگر موجودہ حکومت کوئی پھلوں کے درخت لگاتے تو اس سے جو ہے وہ غریب پہنچ تک جو ہے وہ یہ فروٹ پہنچ جاتا۔ موز اور مہنگائی کے باعث غریب عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے صحت افزا پھلوں کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انار کا دانہ ہو یا انگور کا، غریب کا بچہ دانے دانے کو ترس گیا اور حکومتی وزراء سب اچھا کی لاپ رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ندیم مغل، روہی نیوز خانے والا۔ رکشہ ڈرائیور مہنگائی کے خلاف میدان میں آ گئے۔ امن پسند رکشہ ڈرائیور یونین سمیت آباد روڈ پر سراپا احتجاج بن گئے۔ امن پنجاب رکشہ ڈرائیور کی جانب سے مظاہرہ کرنے پر برکا چوک ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہو گیا۔ علی جاز کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی سے تنگ رکشہ ڈرائیور سڑکوں پر نکل آئے۔ امن پنجاب رکشہ ڈرائیور یونین نے سمیجہ آباد روڈ پر احتجاج کیا اور برکا چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ چیئرمین امن پنجاب رکشہ ڈرائیور یونین کا کہنا تھا کہ ایل پی جی کی قیمت میں 60 روپے اضافہ کیا گیا۔ اگر حکومت نے مہنگائی پر قابو نہ پایا تو پورے پنجاب کے رکشہ ڈرائیور سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں اور ہم امن چاہتے تھے، مگر انہوں نے اتنی مہنگائی تو کی ہے مگر پٹرول کی قیمت بھی بڑھائی ہے، 5 روپے بڑھی ہے۔ گیس کی قیمت انہوں نے 60 روپے فی کلو بڑھائی گئی ہے۔ پہلے گیس کی قیمت 110 روپے کلو تھی کہ جو انہوں نے بڑھاتے 160 روپے 170 روپے دے رہے ہیں۔ 10 روپے کل بڑھا دیے، 70 کر دیے اور یہ کہتے ہیں ہم 200 روپے پہ لے کے جائیں گے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے، ایل پی جی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ اگر ہمارا ایندھن مہنگا ہوگا تو وہ ظاہر ہے ہم سواری سے پیسے لیں گے۔ سواری بھی سفید پوش ہے، مزدور طبقہ ہے، کوئی کیسے کسی مجبوری کی بنا پہ بیٹھے ہیں۔ گیس سستی کرے، آٹا سستا کرے، بجلی کے غریب آدمیوں کے عام گھر کے 3 سے 4 ہزار بل ہے جن کے ایک پنکھا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے حکومت مخالف نعرے بھی لگائے گئے۔ کیمرمین عبد الرحمان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ بجلی کے بلوں میں 5 سے 17% ایڈوانس انکم ٹیکس لاگو۔ ملتان کی پاور لوم انڈسٹری کی مشکلات بھی بڑھ گئیں۔ پاور لومز مالکان نے حکومت کو احتجاج کی دھمکی دے دی۔ محسن الملک کی رپورٹ۔ ملتان کی پاور لوم ایسوسی ایشن نے بجلی کے بلوں میں 15 سے 17% ایڈوانس انکم ٹیکس کو ظالمانہ اقدام قرار دے دیا۔ پاور لومز مالکان نے ٹیکس واپس نہ لینے کی صورت میں احتجاج کی دھمکی بھی دے دی۔ بجلی اتنی مہنگی کر دیتی ہے کہ روزگار بند ہو جائے گا۔ اگر روزگار بند ہو گیا سارے بچے روڈ پہ آ جان گے، اسی کتنے جانا؟ اسی کرایہ کا مکان اسی کرایہ پر آئیں گے، اسی بچوں روٹی کھواواں گے، کی کریں گے؟ ہر چیز کا ریٹ نواں دکاندار دے چلو کہ 10 روپے زیادہ لینے نے، سانوں تو اتنے 10 روپے ود ملتے نہیں ہے، روپیہ نہیں لیندے ود، دیہڑی ساری پوری نہیں پہنتی، گزارا نہیں ہوتا، اسی کی کریں گے؟ ملتان میں 1 لاکھ سے زائد پاور لومز انڈسٹری سے لاکھوں افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ مزدور کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی اور بے روزگاری سے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، ایڈوانس انکم ٹیکس سے انڈسٹری بند ہو جائے گی، گزارا کیسے ہوگا؟ حکومتی پالیسیوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بالکل گزارا نہیں ہو رہا، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں پھاکے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں 700-800 روپیہ دن میں کماتے ہیں، اب اس سے بھی گئے ہیں، اتنی مہنگائی ہوگی ہمارے گھر کا گزر بسر ہی نہیں ہو۔ بہت بہت پڑے گا، یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی مہنگی بجلی کر دیں تو یہ انڈسٹری بند ہو جائے گی۔ یہ تو پہلے کبھی دھاگا بڑھ جاتا ہے، کبھی بجلی بڑھ جاتی ہے، ریٹ رکتے ہی نہیں ہے ایک جگہ۔ اب یہ اگر بند ہو گیا ہمارے تو بچے بھوکے مر جائیں گے۔
एडवांस इनकम टैक्स से छोटे कारोबारी तबके के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान हैं। कहते हैं वो कारोबारी दुनिया में दूसरे ममालिक का कैसे मुकाबला करेंगे। पावरलूम इंडस्ट्री के मालिकान का कहना है कि पावरलूम इंडस्ट्री मुल्तान में पहले ही मुश्किलात का शिकार है। अगर हुकूमत की तरफ से मजीद टैक्स आयद करके मजीद बिजली महंगी की गई तो ये इंडस्ट्री जो लाखों लोगों को रोजगार दे रही है तबाही की तरफ जा सकती है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहसिन मोल, मुल्तान। बात करेंगे कोविड-19 की। जनूबी पंजाब में कोरोना के बाहर जारी है। मजीद 261 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि 2 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए हैं। मुल्तान में सबसे ज्यादा 88 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना का जोर कम न हो सका। एक ही रोज में 261 अफराद वायरस का शिकार हो गए। मुल्तान में 88 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.8% रिकॉर्ड। सरगोदा में 27, बहावलपुर 23 और भक्कर में 40 अफराद मुतासिर। मियाबाली में 38, रहीम जा खान में 12 केसेस रिपोर्ट। खानेवाल में 9, मुजफ्फरगढ़ 4, बहावल नगर 5, खुशाब में 28 अफराद में कोरोना की तस्दीक। राशनपुर में 3 और लोधरा में 4 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस के बाद थम न सके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 20 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 2 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। टीचिंग अस्पताल में 17 मुतासरा मरीज जेर इलाज। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियात जरूरी है। शहरी मास्क का इस्तेमाल और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें। बहावलपुर में भी कोरोना के बाहर जारी। मजीद 2 अफराद जान से गए, जबकि 23 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के बायस 239 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जिले भर में एक्टिव केसेस की 452, जबकि मस्बत केसेस की शरह 4% है। मुल्तान की कबूतर मंडी में कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी गई। शहरियों ने समाजी फासला बरकरार रखा, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। के रोज लगने वाली कबूतर मंडी में कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी गईं। शहरियों ने समाजी फासला नजरअंदाज कर दिया और मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया। भाईजान नाक की हड्डी टूटी हुई है, जिस वजह से तंगी होती है, मास्क इसलिए नहीं पहना हुआ। आपकी नाक की हड्डी? हाँ जी। शहरियों का कहना था कि कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं। जब तक कोरोना नहीं देखेंगे तब तक यकीन नहीं करेंगे। शहरियों ने मजीद कहा कि उन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है, अब कोरोना का कोई डर नहीं। लोग देखो जी ऐसे ही अब किसी ने लगाया किसी नहीं लगाया, बस ऐसे कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो कहे मास्क पहन लो ये कर लो, कोई भी नहीं है यहाँ पे। हजूम ना लगाओ, रश ना करो। नहीं भीड़ लगी है, लगी रहने दो। कुछ शहरियों का ये भी कहना था कि इंतजामिया को SOPs की खिलाफ वर्जी की कोई परवाह नहीं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त का मामला। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पार्लिमानी बोर्ड सैयद बाबर शाह ने हार की वजह पार्टी के अंदरूनी इख्लाफात और मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डहर को करार दे दिया। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त के मामले पर सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह का रद्द अमल सामने आया है। रोहित से गुफ्तगू करते हुए सैयद बाबर शाह का कहना था कि पार्टी के अंदरूनी इख्लाफात की वजह से कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में हारे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डहर ने वसाइल पैदा किए। तहरीक इंसाफ ने UC लेवल पर तंजीम साजी भी शुरू कर दी है। कारकुनों को मुतहरिक करेंगे। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। फलों की कीमतें सुनकर शहरियों के उत्साह खता हो गए। नदीम मुगल की रिपोर्ट। शहरी फलों की कीमतें सुनकर परेशान हो गए। सेब 160 से 180 रुपए फी किलो, जबकि अंगूर 300 रुपए और अनार 160 रुपए से 180 रुपए फी किलो बिकने लगे। इसी तरह जापानी फल 170 रुपए और अमरूद की 130 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। खरीदारों का कहना था कि अब तो बच्चों को फल भी नहीं खिला सकते। दुकानदार बेचारा परेशान है। इधर कस्टमर जो है वो अपना दाव के ऊपर होता है कि हमें सस्ता भी मिल जाए और अच्छा भी मिल जाए, पर यहाँ जो आड़ती है अच्छे फ्रूट की अच्छी कीमत लेता है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से लाखों पौधे लगाए गए। अगर फलदार पौधे लगाए जाते तो आम आदमी के लिए आने वाले वक्त में फल ही सस्ता मुयसर हो जाता। फ्रूट इस वक्त इतना महंगा हो चुका है कि किसी भी गरीब आदमी के बस की बात नहीं है फ्रूट खाना। अगर ये देखें 1 मिलियन ट्री दरख्त लगा रही थी मौजूदा हुकूमत, अगर मौजूदा हुकूमत कोई फलों के दरख्त लगाते तो उससे जो है वो गरीब पहुंच तक जो है वो ये फ्रूट पहुंच जाता। मूज और महंगाई के बायस गरीब आवाम की कमर टूट गई है। शहरियों ने हुकूमत से सेहत अफजा फलों की कीमत कम करने का मुतालबा किया है। अनार का दाना हो या अंगूर का, गरीब का बच्चा दाने दाने को तरस गया और हुकूमती वज़रा सब अच्छा की लाप रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल।
रिक्शा ड्राइवर महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गए। अमन पसंद रिक्शा ड्राइवर यूनियन समीचाबाद रोड पर सरापा एहतजाज बन गए। अमन पंजाब रिक्शा ड्राइवर की जानिब से मुजाहरा करने पर बरका चौक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अली जाज की रिपोर्ट देखिए। महंगाई से तंग रिक्शा ड्राइवर सड़कों पर निकल आए। अमन पंजाब रिक्शा ड्राइवर यूनियन ने समीजाबाद रोड पर एहतजाज किया और बरका चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। चेयरमैन अमन पंजाब रिक्शा ड्राइवर यूनियन का कहना था कि एलपीजी की कीमत में 60 रुपए इजाफा किया गया। अगर हुकूमत ने महंगाई पर काबू ना पाया तो पूरे पंजाब के रिक्शा ड्राइवर सड़कों पर निकल आएंगे। हम अमन पसंद लोग हैं और हम अमन चाहते थे, मगर इन्होंने इतनी महंगाई तो की है मगर पेट्रोल की कीमत भी उठाई है, 5 रुपए बढ़ी है। गैस की कीमत इन्होंने 60 रुपए फी किलो बढ़ाई गई है। पहले गैस की कीमत 110 रुपए किलो थी कि जो इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते 160 रुपए 170 रुपए दे रहे हैं। 10 रुपए कल बढ़ा दिए, 70 कर दिए और ये कहते हैं हम 200 रुपए पे लेके जाएंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। एलपीजी और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। अगर हमारा ईंधन महंगा होगा तो वो जाहिर है हम सवारी से पैसे लेंगे। सवारी भी सफेद पोश है, मजदूर तबका है, कोई कैसे किसी मजबूरी की बिना पे बैठे हैं। गैस सस्ती करे, आटा सस्ता करे, बिजली के गरीब आदमियों के आम घर के 3 से 4 हजार बिल है जिनके एक एक पंखा है। मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए गए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अली रियाज, मुल्तान। बिजली के बिलों में 5 से 17% एडवांस इनकम टैक्स लागू। मुल्तान की पावर लूम इंडस्ट्री की मुश्किलात भी बढ़ गईं। पावर लूम्स मालिकान ने हुकूमत को एहतजाज की धमकी दे दी। मौसम मुल्क की रिपोर्ट। मुल्तान की पावर लूम एसोसिएशन ने बिजली के बिलों में 15 से 17% एडवांस इनकम टैक्स को जालिमाना इकदाम करार दे दिया। पावर लूम्स मालिकान ने टैक्स वापस ना लेने की सूरत में एहतजाज की धमकी भी दे दी। बिजली इतनी महंगी कर दी है कि रोजगार बंद हो जाएगा। अगर रोजगार बंद होगा साढ़े बच्चे रोड पे आ जाएंगे, असं कितने जाना। असं किराए का मकान असं किराया भरांगे, मजदूर बच्चों रोटी खवावांगे, की करांगे। हर चीज का रेट नवा दुकानदार जो चल जाओ कहना जी 10 रुपये ज्यादा लेने ने, सानू तो इतने 10 रुपये वध मिलते नहीं है, रुपया नहीं देंगे वध। दिहाड़ी साडी पूरी नहीं पैंदी, गुजारा नहीं हुंदा, असीं की करांगे। मुल्तान में 1 लाख से जायद पावर लूम्स इंडस्ट्री से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। मजदूर कहते हैं पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से चूल्हे ठंडे पड़े हैं। एडवांस इनकम टैक्स से इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, गुजारा कैसे होगा? हुकूमती पॉलिसियों की कुछ समझ नहीं आ रही। बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। हमारे घर में फाके हैं, हम मजदूरी करते हैं, 700-800 रुपया दिन में कमाते हैं, अब उससे भी गए हैं। इतनी महंगाई हो गई, हमारे घर का गुजर बसर ही नहीं हो। बहुत बोझ पड़ेगा। ये हमारे जो हुक्मरान है ये क्या कर रहे हैं? इतनी महंगी बिजली कर देंगे तो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये तो पहले कभी धागा बढ़ जाता है, कभी बिजली बढ़ जाती है, रेट रुकते ही नहीं है एक जगह। अब ये अगर बंद हो गया हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। एडवांस इनकम टैक्स से छोटे कारोबारी तबके के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान हैं। कहते हैं वो कारोबारी दुनिया में दूसरे ममालिक का कैसे मुकाबला करेंगे। पावर लूम इंडस्ट्री के मालिकान का कहना है कि पावर लूम इंडस्ट्री मुल्तान में पहले ही मुश्किलात का शिकार है। अगर हुकूमत की तरफ से मजीद टैक्स आयद करके मजीद बिजली महंगी की गई तो ये इंडस्ट्री जो लाखों लोगों को रोजगार दे रही है तबाही की तरफ जा सकती है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहसिन मोल, मुल्तान। बात करेंगे कोविड-19 की। जनूबी पंजाब में कोरोना के बाहर जारी है। मजीद 261 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि 2 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए हैं। मुल्तान में सबसे ज्यादा 88 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना का जोर कम न हो सका। एक ही रोज में 261 अफराद वायरस का शिकार हो गए। मुल्तान में 88 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.8% रिकॉर्ड। सरगोदा में 27, बहावलपुर 23 और भक्कर में 40 अफराद मुतासिर। मियावाली में 38, रहीमजा खान में 12 केसेस रिपोर्ट। खानेवाल में 9, मुजफ्फरगढ़ 4, बहावल नगर 5, खुशाब में 28 अफराद में कोरोना की तस्दीक। रासनपुर में 3 और लोधरा में 4 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस के बाद थम न सके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 20 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 2 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। टीचिंग अस्पताल में 17 मुतासरा मरीज जेर इलाज। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियात जरूरी है। शहरी मास्क का इस्तेमाल और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें।
बहावलपुर में भी कोरोना के बाहर जारी, मजीद 2 अफराद जान से गए जबकि 23 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के बायस 239 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जिले भर में एक्टिव केसेस की 452 जबकि मस्बत केसेस की शरह 4% है। मुल्तान की कबूतर मंडी में कोरोना शोपीस की धज्जियां बिखेर दी गईं। शहरियों ने समाजी फासला बरकरार रखा, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। हर के रोज लगने वाली कबूतर मंडी में कोरोना एसओपीज की धज्जियां बिखेर दी गईं। शहरियों ने समाजी फासला नजरअंदाज कर दिया और मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया। नाक की हड्डी टूटी हुई है, जिस वजह से तंगी होती है, मास्क इसलिए नहीं पहना हुआ। आपकी नाक की हड्डी? हाँ जी। शहरियों का कहना था कि कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं, जब तक कोरोना नहीं देखेंगे तब तक यकीन नहीं करेंगे। शहरियों ने मजीद कहा कि उन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है, अब कोरोना का कोई डर नहीं। लोग देखो जी ऐसे ही अब किसी ने लगाया किसी ने नहीं लगाया, बस ऐसे कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो कहे मास्क पहन लो ये कर लो, कोई भी नहीं है यहाँ पे। हजूम ना लगाओ, रश ना करो। नहीं भीड़ लगी है, लगी रहने दो। कुछ शहरियों का ये भी कहना था कि इंतजामिया को एसओपी की खिलाफ वर्जी की कोई परवाह नहीं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त का मामला। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पार्लिमानी बोर्ड सैयद बाबर शाह ने हार की वजह पार्टी के अंदरूनी इख्लाफात और मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डहर को करार दे दिया। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त के मामले पर सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह का रद्द-ए-अमल सामने आया है। रोहित से गुफ्तगू करते हुए सैयद बाबर शाह का कहना था कि पार्टी के अंदरूनी इख्लाफात की वजह से कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में हारे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डहर ने वसाइल पैदा किए। तहरीक इंसाफ ने यूसी लेवल पर तंजीम साजी भी शुरू कर दी है। कारकुनों को मुतहरिक करेंगे। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। कचहरी चौक पर ट्रैफिक सिग्नल्स को खराब हुए 2 साल हो गए। सड़क पार करने वाले राहगीरों को मुश्किलात का सामना। शाम को ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक वार्डर न होने के बाद ट्रैफिक घंटों जैम रहना मामूल बन गई। नाज़रीन है शहर मुल्तान के मसरूफ तरीन चौक कचहरी के, जहां इंतजामिया ने शहर के हुस्न को दोबारा करने के लिए क्लस्टर लाइट्स तो लगवा दी मगर सड़क पर मौजूद ट्रैफिक सिग्नल्स ना चला सकी। शहरियों ने कहा कि पिछले 2 साल से ट्रैफिक सिग्नल्स ना चलने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ट्रैफिक की बहुत मुश्किलात होती हैं। इधर हमें बास टाइम इतनी ट्रैफिक होती है कि जाम हो जाए तो हमें घंटों घंटों इधर वेट खड़े होना पड़ता है और बुजुर्ग शहरी जो हैं वो घंटों घंटों खड़े रहते हैं इसीलिए कि कब रोड क्लियर होगा तो हम रोड क्रॉस करेंगे। दूसरी जानिब रोड क्रॉस करने वाले राहगीर बुजुर्गों को भी मुश्किलात का सामना रहता है, जो ट्रैफिक का बहाव ज्यादा होने की वजह से घंटों सड़क पार करने के लिए खड़े रहते हैं। शहरियों का कहना है कि बारहा जिले इंतजामिया को दरख्वास्त दे चुके हैं मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकी। बड़ी देखभाल के सड़क क्रॉस करनी पड़ी हमें और बड़ी मुश्किल से हम निकलना पड़ा यहाँ से और ये ट्रैफिक का निजाम बिल्कुल नकारा, यानी कि ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाती है। बाद तो फिर बड़े बड़े परेशानी उधर से भी चल पड़ती है। उधर ट्रैफिक जब दोनों 3 तरफ इकट्ठी चलती है तो वो रश बढ़ जाता है और इसमें बहुत मुश्किल पैदा होती है। कुछ स्कूल जाने वाले, कोई एम्बुलेंस जाने वाली, ऐसे काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होती है। शहरियों का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर आला अफसरों का भी इस चौक से गुजर है मगर ट्रैफिक सिग्नल्स की खराबी का किसी ने नोटिस नहीं लिया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। शहर औलिया इंतजामिया के अहलिया हम शाहरा बीसीडी चौक का बंद फवारा नशई अफराद का मस्कन बन गया जबकि सड़क की खूबसूरती भी मांद पड़ने लगी। अलियास की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के दावे ठूस बंद फवारों को फाल न किया जा सका। एक अरसे से बंद बीसीजी चौक का फवारा ऐलान के बावजूद भी फाल न हो सका। फवारे में गंदगी और कूड़े के ढेर पड़े हैं। ये कब से बंद पड़ा हुआ है, इसको चालू किया जाए। गंदगी बहुत हो गई यहाँ पर, चलता था ये बहुत खूबसूरत लगता था, अब बिल्कुल सही नहीं लगता। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को बंद फवारे जल्द फाल करने चाहिए और उनकी सफाई सुथराई के लिए भी बंदोबस्त किया जाना चाहिए। ये चौक फवारे के गिर्द नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल रखे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। खेल से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाएं। आपको बताएं कि पाकिस्तान को खतरे की तफसील बताई है ना ही बताएंगे, ऐसा कहना है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का। न्यूजीलैंड के मीडिया ने दावा किया है कि 5 मुल्की इंटेलिजेंस इत्तेहाद ने दौरा मनसूख करने का मशवरा दिया था। ये क्या मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट की पाकिस्तान का दौरा मनसूख होने पर अजीबोगरीब वजाहतें।
कहते हैं खतरे की मखसूस तफसीलात ना बताई जा सकती थी, ना बताई जाएंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए पुरअज़्म थी, लेकिन सब कुछ बदल गया, जिसकी वजह से जो वाहिद जिम्मेदाराना फैसला समझ में आया, न्यूजीलैंड ने वही किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को अपनी हुकूमत की जानिब से मखसूस और मुसद्दिका खतरे के बारे में आगाह किया गया था, जबकि इस इत्तला की तस्दीक न्यूजीलैंड क्रिकेट के सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स के अलावा आजादाना तौर पर भी की गई थी। डेविड वाइट का कहना था कि न्यूजीलैंड हुकूमत से मिलने वाली रहनुमाई के बाद सीरीज मंसूखी के सिवा कोई चारा नहीं था। मालूम है कि ये पीसीबी के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेशा वराना रवैये और अच्छे सलूक पर उनके शुक्रगुजार हैं। टीवी बोर्ड के मुताबिक टीम के 34 खिलाड़ी और स्टाफ अराकीन ने दुबई में डेरे डाल रखे हैं, जहां वो होटल में 24 घंटे करंटीना रहेंगे। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर दौरा खत्म करने वाले कीवीज भूल गए कि पाकिस्तान दुनिया का पुरअमन तरीन मुल्क है। वेस्ट इंडीज क्रिकेटर क्रिस गेल ने न्यूजीलैंड को जवाब देने के लिए पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। 2 बरस कबल बरतानवी शाही जोड़े ने भी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। Pakistan is one of the safest places right now in the world, you know, so yes, they say you get presidential security, so you're in good hands. खेल से खिलवाड़ करने वाले कीवीज को क्रिस गेल ने करारा जवाब दे दिया। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर ने सिक्योरिटी पर एतमाद का इजहार करते पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया, जिसने क्रिकेट के दीवानों के दिल जीत लिए। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर शर्फीन ब्रथफोर्ड ने क्रिस गेल के बयान पर कहा कि वो भी गेल के साथ पाकिस्तान आना चाहेंगे। न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी का तो सिर्फ बहाना बनाया, वरना पाकिस्तान ने पीएसएल, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडियन टीम की मेजबानी की और साबित किया कि सिक्योरिटी का तो कोई मसला नहीं। सिक्योरिटी का रोना रोने वाले कीवीज शायद भूल गए, बरतानवी शाही जोड़े शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ने पाकिस्तान का दौरा किया और क्रिकेट खेलकर खौफ के छक्के छुड़ा दिए। और तो और डेरन सैमी को ही ले लें, वो तो बस गाड़ी से उतरे और शहरियों के साथ क्रिकेट खेलने पहुंच गए। अमरीकी खवातीन बाइकर्स ने भी बिला खौफ पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों का नजारा लिया और पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दिया। रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंतजामिया के ज़रिए तमाम सादिक क्लब में 2 रोज़ा लॉन टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल हुआ है। बहावलपुर की टीम ने फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। के सादिक क्लब में होने वाले लॉन टेनिस के फाइनल टाकरे में जिला बहावलपुर और जिला रहीमिया खान की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक, इंटरनेशनल बॉक्सर सैयद कंबर अली हमदानी, इंटरनेशनल ताइक्वांडो रेफरी शकील यूसुफ और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर मोहम्मद उस्मान इफ्तिखार समेत दीगर भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल करते हुए खेलों को फरोग दे रहे हैं। जब से कोविड आया पिछले 2 सालों से स्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत कम हुई हैं, लेकिन अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की भी डायरेक्शंस हैं और हम स्पोर्ट्स को दोबारा से रिन्यू कर रहे हैं इन तमाम एक्टिविटीज़ को। फाइनल के टाकरे में जिला बहावलपुर की टीम ने फतह का सेहरा अपने नाम किया, जबकि खिलाड़ियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस से शुरा भी खूब लुत्फानंदोज हुए। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमिया खान। कॉलोनी में सहूलियात का फुकदान है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सिविल सिस्टम भी दरहम बरहम है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। डीडी खान से आशिर इशफाक की रिपोर्ट। गाजी खान की गाजी कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात की अदम फरामी पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता कई सालों से कॉलोनी का कोई वली वारिस नहीं, सुई गैस मौजूद है और ना ही सीवरेज सिस्टम। तकलीफ़ साकूं असां अफसरन को आ थक गए, साढ़े किराए भी कटींदे पैन, सब ज निज़ाम थींदा पे, कोई सेवरेज निज़ाम कोनी, सेवरेज बिल्कुल नहीं है, कोई खड्ड है, गैस भी नहीं है, सेवरेज नहीं है, पानी पीवा नहीं है, रोड भी सही नहीं है, कोई चीज़ भी सही नहीं है। इलाका मकीनों का कहना था कि कॉलोनी में सफाई सुथराई का कोई निज़ाम है और ना ही सड़कें और गलियां पुख्ता हैं। सरकारी क्वार्टरों के रिहायशी मुश्किलात का शिकार हैं। पिछले 3 साल से यहाँ पे कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई गई। जगह जगह पर सड़क पर पानी खड़ा हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। पिछले दिनों यहाँ पर कार गिरी है। 20 मिलियन का फंड रिलीज हुआ है, मोहतरमा पता नहीं कहाँ खर्च कर रही हैं वो 20 लाख। अभी तक यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लगा।
कॉलोनी के बासियों ने सफाई सुथराई का निजाम बेहतर करने समेत दीगर मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। माले मुफ्त जिले पर अहम जिला काउंसिल लिया का 100 साल पुराना खजूरों वाला बाग देखभाल न होने से उजड़ गया है। बाग में लगाए गए आला अक़साम के पौधे भी सूख गए हैं। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट देखिए। लिया में 100 साल पुराना खजूरों बाग आज भी तारीखी अहमियत का हामिल है, मगर लिया जिला बनने के बाद 76 कनाल अराजी पर खजूरों बाग जिला कौंसिल के हिस्से में आया तो अदम तवज्जी के बहस उजड़ता चला गया। बाग में अरबी, अरवी, खुदरी, हलावा समेत मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए जो अब सूख चुके हैं, जिस पर शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। ये एक तारीखी विरसा है। मैं समझता हूँ कि इस बाग की अदम पैरवी और अदम दिलचस्पी महकमे की वजह से ये मुसलसल जो है ना उजड़ता जा रहा है। इसमें खुदरी खजूर है, तपाशा खजूर है, हलावी खजूर है और जो सबसे अहम बात है इसमें अरबी खजूर के बहुत से दरख्त हैं जो नायाब तरीन दरख्त गिना जाता है। इंतजामिया की बेहसी का ये हाल है कि अरसा दराज से बाग को सैराब करने के लिए लगाई गई मोटर का बिल अदा न होने पर कनेक्शन कट चुका है। देखभाल न होने पर खजूरें सूख गई, जबकि अराजी भी कब्जा माफिया की नजरों में आ गई, जिस पर मकामी अफराद इंतजामिया से शिकवा कुना है। ये बाग जो है 76 कनाल पर मुहित था। अब इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ लोगों के कब्जे होने के बाद ये अब 64-65 कनाल बच चुका है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया खजूरों बाग की देखभाल के लिए फौरी इक़दामात उठाए, जिससे न सिर्फ जिला काउंसिल की इनकम में इजाफा हो सकेगा बल्कि कौमी विरसे को भी बचाया जा सकेगा। तारीखी अहमियत का हामिल खजूरों बाग इस वक्त उजड़ने की सूरत हाल के अंदर आ चुका है। जरूरत इस अमर की है कि जिला इंतजामिया समेत दीगर आला हुकाम नोटिस लेकर इस तारीखी विरसे को बहाल रखने के लिए इक़दामात करें। कैमरा टीम के साथ ज़ाहिद सरफराज, लिया। रहीम खान में पीटीआई के एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और एमपीए चौधरी आसिम मजीद ने नूरेवाली कॉलोनी में 15 करोड़ रुपए की लागत से सड़क की तामीर के संगे बुनियाद रख दिया। सड़क कश्मीर पुल से नूरेवाली कॉलोनी तक तामीर की जाएगी। चौधरी जावेद इकबाल का कहना था कि सड़क से हल्के के मसाइल हल होंगे, जबकि चौधरी आसिम मजीद का कहना था कि सड़क 8 माह तक तामीर हो जाएगी। उनका मजीद का कहना था, ये आपको सुनवा दें। अल्लाह ताला के फजल से हमने सिटी पैकेज जो 1 करोड़ रुपए की लागत से रहीमयार खां में सड़कें शुरू होने जा रही हैं, कारपेट, उसका आगाज हमने नूरे वाली फाटक से किया है और ये यूनिलीवर पुल तक जाएगा। ये सड़क मेरा ख्याल है कम से कम 10-40 फुट चौड़ी है और ये 10 साल से टूट फूट का शिकार थी। इन इलाकों के लिए मेन गुजरगाह थी। आज मैं और जावेद वड़ाई साहब यहाँ हाजिर हुए हैं। नूरे वाली से सिटी पैकेज का आगाज किया है। अल्लाह ताला के फजल से ये सिलसिला पूरे शहर में चलेगा, जिसमें वज़ीर आला पंजाब का मशकूर हूँ, ममनून हूँ, जिन्होंने इमरान खान के विजन के मुताबिक हमें इतना बड़ा पैकेज दिया और जिससे पूरा शहर मुस्तफीद होगा इंशाल्लाह। ये नूरे वाली एशिया की सबसे बड़ी वादी है, इसमें उसी लिहाज से मसाइल थे। ये रोड कई दहाइयों से टूट फूट का शिकार थी। हमने अपने जो सिटी पैकेज का आगाज यहाँ से किया, क्योंकि नूरे वाली लोग, जो नूरे वाली के लोग हैं, हमसे उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी थी, इसलिए इनका हक बनता था कि आज हमने यहाँ से संगे बुनियाद रखे। इंडस्ट्रियल स्टेट बहावलपुर की सुनी गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर के सदर चौधरी तनवीर कहते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट बहावलपुर के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। इंडस्ट्रियल स्टेट बहावलपुर के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी हुई है। फंड्स अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंडस्ट्रियल स्टेट पर लगाए जाएंगे। साबिक सदर प्रेस क्लब और मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नसीर नासिर ने कहा कि कई साल से चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन फंड्स के लिए कोशां है। उधर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज के ज़रिए तमाम सेमिनार हुआ। दिफाई तर्जुमा निगार जनरल रिटायर्ड अमजद शैब कहते हैं, अब एक मरतबा फिर तालिबान की हुकूमत है। मौजूदा तालिबान हुकूमत अपनी पहचान चाहती है, लेकिन अक़वाम आलम कबूल करने के लिए लैतुलाल से काम ले रहे हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज के ज़रिए तमाम तालिबान का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के लिए इम्तिहान और खदशात के मौजू पर सेमिनार मुनक्किद हुआ। और सीएम अंकल हाथी क्यों नहीं है? बहावलपुर चिड़ियाघर में हाथी क्यों नहीं? चिड़ियाघर सैर तफरी के लिए आने वाले बच्चे डिसअपॉइंटेड हो गए। बच्चों ने सीएम पंजाब से हाथी की डिमांड कर दी है। बहावलपुर चिड़ियाघर खूबसूरत तफरीगाह है। शहरी बच्चों के साथ तफरीगाह घूमने फिरने आते हैं। छोटे बच्चे चिड़ियाघर में हाथी की बाबत पूछ रहे हैं। हाथी न होने से बच्चों में मायूसी का इजहार हो गया। बच्चों ने चिड़ियाघर में हाथी की कमी को पूरा करने का मुतालबा किया है।